Students, today we are going to discuss the chapter 1 of business studies of class 11 part 2. Our chapter is nature and purpose of business. In the part 1 I have explained to everyone that what is business and how many types of activities are done by the human beings. So before to explain this topic which I am going to discuss today, I would like to recall the previous topic of my video in which I have explained what is business. So business is that activity which is engaged in the production process, sale of goods and services, procurement of goods and services, and which is done for the profit maximization or the wealth maximization. Along with that, there are two types of activities which are done by all the human beings wherever they are existing. The first one is economic activity and the second one is non-economic activity. Economic activity is that activity in which human earn something, human earn for their livelihood, like profession, business, employment. And the other hand, non-economic activities are those activities which are done by the human beings to get the psychological satisfaction. They do not earn anything, they do not earn any single penny in that. Like if we go to the temple, then we do not earn anything to if we go to the temple. So we are going to the temple only for getting the psychological satisfaction. So there are two types of activities which are done by all the human beings. The first one is economic activity and the non-economic activity. Same like that, in the today's topic, that is objectives of business. So there are two types of objectives every business has. The first one is economic objectives and the social objectives. Economic objectives are those objectives in which every business organization wants to earn something, wants to run his or her organization for long time in the market, in the society. And on the other hand, social objective. Without fulfilling these social objectives, any business organization can't make its reputation in the market, and along with that, business is also the part of the society. So business has the responsibility to fulfill the social objectives regarding the society. So there are some economic objectives of the business. The first one is earning profit, the second one is market standing, the third one is innovation, the fourth one is optimum utilization of resources, and the fifth one is increased productivity. On the other hand, social objective, there are five subtopics or five objectives. The first one is supply of quality goods and services. The second one is employees welfare. The third one is social welfare. The fourth one is follow socially fair trade, and the fifth one is employment opportunities. So first we will understand
earning profit, the first economic objective. Earning profit means to maximize the wealth, to maximize the profit. ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, उसका मेन जो एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। क्योंकि अगर प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि सर्वाइवल किस पर डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट किसका होगा? स्टेक होल्डर्स का। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो जो सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, वो सारी की सारी क्या करी जा सकती हैं? पे करी जा सकती हैं। अगर लाइबिलिटीज को पे नहीं किया गया तो क्या होगा? डेप्थ बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टॉप करना पड़ेगा या वो मार्केट से आउट हो जाएगा। ठीक है, सो पहला और मेन ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज अर्निंग प्रॉफिट। सेकेंड इज मार्केट स्टैंडिंग। ठीक है, मार्केट स्टैंडिंग का मीन्स यहाँ पर है कि सर्वाइवल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो कोई भी बिजनेस जब सेटअप किया जाता है तो वो हमेशा ये सोच के किया जाता है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव करेगा मार्केट के अंदर या सोसाइटी के अंदर। क्योंकि अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये आ जाता है कि ना तो वो अर्निंग प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट भी नहीं अर्न कर पा रहा है और ना ही उसका रेपुटेशन जो है वो मार्केट में अच्छा है, इसीलिए वो मार्केट से बाहर हो गया। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड और मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो मार्केट स्टैंडिंग है। ठीक है, यानी सर्वाइवल फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब सर्वाइव करेगा लंबे समय तक के लिए तो वो प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं कमाएगा और प्रॉफिट के बेस पर ही वो सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा जो हमारा पॉइंट है 3. सो द थर्ड टॉपिक is innovation in the economic objectives of the business. Innovation means to become the first mover, to get the first mover advantage. Means कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करता रहता है। ठीक है, और हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, ठीक है, कस्टमर के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना। ठीक है, क्योंकि नया प्रोडक्ट कोई भी अगर मार्केट के अंदर आएगा, ठीक है, और जो कंपनी लेकर आएगी वो क्या करेगी? वो निश्चित रूप से फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेगी। जैसे कि आप देख लीजिएगा कि पुराने समय में, आज से कई साल पहले डेस्कटॉप पे काम होता था, फिर उसके बाद इनोवेशन हुआ और लैपटॉप आए। लेकिन जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया जिस कंपनी ने लैपटॉप का, वो कौन सी थी? तोशिबा। ठीक है, तो तोशिबा ने उस समय कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को समझा और वहां उसने अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज किया। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड, ठीक है, उनकी जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस को समझ के उसने क्या किया? नया प्रोडक्ट लॉन्च किया लैपटॉप के रूप में और तुरंत ही उसने क्या किया? फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाया। तो इनोवेशन का मीन्स यहीं पर है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लगातार न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहना होता है। ठीक है, और लगातार कस्टमर के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं उनको समझते रहना होता है। साथ साथ जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट टाइम में रन कर रही है या फिर कोई भी इनोवेशन हुआ है साइंटिफिक, ठीक है, टेक्नोलॉजी में, तो उसको अडॉप्ट करना। तो ये सारी चीजें किस में आ गई? इनोवेशन में आ गई। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का जो थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज इनोवेशन। द फोर्थ वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
तो कोई भी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए तो उसके पास एक तो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, और दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक तो फिजिकल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर मशीन, ठीक है, मनी, ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई, वो आपका, और जैसे प्रोडक्शन यूनिट, वो सारी की सारी फिजिकल रिसोर्स में आ गई। और सेकंड आपका वर्कफोर्स या ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, वो आपका सेकंड हो गया। अब उनको अगर आप क्या करेंगे, बेहतर तरीके से यूज करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली रूप से आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगा, सरवाइव करेगा। मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस अगर होगा तो आपने जो गोल सेट किया है, ठीक है, जो प्रॉफिट आपने सोचा है, प्लान किया है, तो डेफिनेटली वो भी अचीव होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज आ जाती है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरीके से यूज करना, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करना, ताकि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम से कम हो और कम से कम कॉस्ट में लोगों को वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सके, ठीक है। द फिफ्थ पॉइंट इज इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी का मीन्स भी यही है कि लगातार कोशिश करते रहना कि किस तरीके से हम अपनी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन करें अच्छे से अच्छे तरीके से, अलॉन्ग विद दैट मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करें, कॉस्ट को कम करें, ठीक है। और जब ये सारी चीजें होंगी तो डेफिनेटली रूप से प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इन जो वैल्यू ऑफ इनपुट्स हैं वो भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पर वही चीज आ गई कि इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्शन को बढ़ाते रहना अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट। तो दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स, economic objectives of the business, and now we are going to the social objectives. The first social objective is supply of quality products and services. Supply of quality products and services means कि कोई भी बिजनेस, मैं आपको पहले बता दिया कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी का ही एक पार्ट है, ठीक है। बिजनेस, ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, इन द मार्केट, so it is necessary to fulfill all the responsibility towards the society, ठीक है। तो जो सोसाइटी को फुलफिल अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं तो वो रेपुटेशन बनाते हैं, अपनी गुड रेपुटेशन बनाते हैं सोसाइटी के अंदर, कंज्यूमर के अंदर, ठीक है। और उसके कारण बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक के लिए, लॉन्ग टाइम तक के लिए सरवाइव करते हैं मार्केट के अंदर। वहीं पर अगर एक ऐसा बिजनेस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी जो है उनको फुलफिल नहीं करता तो वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता और ना ही वो उतना भी प्रॉफिट कमा सकता है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में जो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहा है। तो ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम है प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो प्रोडक्शन कैसा हो, क्वालिटी का हो, ठीक है, उसमें क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया हो, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर जो है वो जब पैसा देता है तो वो उस पैसे के अकॉर्डिंग वैल्यू प्रोडक्ट भी चाहता है, ठीक है। तो सर्विस जो दे रहे हैं या प्रोडक्ट्स जो दे रहे हैं वो क्वालिटी होगी, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। सेकेंड इज एम्प्लॉइज वेलफेयर, ठीक है। एम्प्लॉइज वेलफेयर का मीन्स यहाँ पर क्या है कि कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है या बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ शेयर जो है वो एम्प्लॉइज को भी जाना चाहिए, ताकि उन क्या है जो एक इनकम फ्लो है, ठीक है, वो टॉप टू बॉटम हो सके और सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो सके, अपलिफ्ट हो सके, ठीक है। द थर्ड वन इज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर भी यहीं पर आ गई कि सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी का ही पार्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर
किस तरीके से सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है, जैसे कि स्कूल बनवा दिए या कॉलेज बनवा दिया, ठीक है, या फिर स्टेडियम खुलवा दिया और तुम्हारा ग्रीनरी कर दी। तो इस तरीके की किस तरीके से सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या सोसाइटी की जो तरीका है रहने का, उसको किस तरीके से अपलिफ्ट किया जाए, ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। इसमें कि जब क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे तो निश्चित रूप से कंज्यूमर खरीदेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करेगा और उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, सोसाइटी का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज फॉलो सोशली फेयर ट्रेड, ठीक है। तो फॉलो सोशली फेयर ट्रेड, जो फेयर ट्रेड का मीन्स है कि माल प्रैक्टिसेस से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है, वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करें, ठीक है। माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी दोषपूर्ण नीति के द्वारा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी चाहिए बिजनेस करते वक्त, और जितने भी रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं उनको वायलेट ना करें, ठीक है। वो जब भी करे काम, ठीक है, जब भी अपनी एक्टिविटीज़ को रन करे, फंक्शन करे, तो हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किए गए हैं वो हमेशा ध्यान में रखकर ही वो उसकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मोनोपोली में हैं तो आपने दाम इतने बढ़ा दिए कि कंज्यूमर खरीद ही नहीं पा रहा है, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इतना हो कि कंज्यूमर उसको क्या कर सके, अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो इस तरीके की फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, कोई भी माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किए गए वो वायलेट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसका हिस्सा, फिर बता रहा हूँ मैं आपको लोगों को कि सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है। और जो ह्यूमन रिसोर्स आता है, ठीक है, वो भी कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से, सोसाइटी से। सोसाइटी से आने के कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, ताकि लोग जो जॉब सीकर्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट पा सकें, और जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सोसाइटी की कम हो सके, अगर ख़त्म नहीं हो सके तो वो कम से कम हो सके, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा देश का, हमारे कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है। तो और जब कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली बिजनेस का भी डेवलपमेंट होगा, बिजनेस भी लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव करेगा। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस which every business has to accomplish. The first one is economic and the second one is social, which I have explained you completely. I hope you will like my video, share my video and subscribe my video. Thank you.